Good afternoon, all, and welcome to the session of 8085, in which we are going to the explore about the instruction set of 8085. Right? Hopefully, my screen is visible to you all. Anyone can reply yes. If you are able to view my screen, so we'll be starting with the instruction set of 8085, and for that what we require the basic knowledge of 8085 microprocessor, right? So we have done that. We know what is IC and what is the architecture, internal block diagram of 8085, that we have understood. Now what about the instructions? So we have to give some instruction, and those instructions are in the form of mnemonics, right? We have to write short forms of those instructions, and those short forms are called as mnemonics. I have told you, we have done that one of the programs, and in which I have tried to tell you what are mnemonics. So we will be studying those mnemonics, and by expanding those mnemonics, we will come to know that what that instruction, or what that say the instruction is going to mean, or what CPU is going to understand by that instruction, right? So that we are going to explore today. So starting with this, the first one uh, is the instruction set of 8085, in which, and what is an instruction? So an instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function, right? तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमको बच्चों से कुछ काम कराने हैं, तो बच्चों को हमको ऐसे बोलना पड़ता है कि बेटा ये सामान वहां से लेकर, यहाँ से लेकर वहां पर रख दो, राइट? सो ये क्या किया हमने हमने वो बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जॉब, ये फंक्शन परफॉर्म करना है. वो बच्चा क्या करता है, वो ग्लास वहां से उठा के वहां पे रख देता है. फिर हम उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा, वहां नहीं रखना था, उधर रखना, राइट? तो फिर से क्या करता है, बच्चा वहां से उठाता है, उधर रखता है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू दैट किड so that he should perform a specific function. That is the same job of the instruction over here in the 8085. So we are going to give a certain instructions to that microprocessor to perform a particular function, right? That is called as an instruction. And what do you understand by a program? Now program is a set of such instructions in which we are trying to perform a total activity, एक particular क्या कहते हैं उसको, फंक्शन या एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टेप वाइज लिखने वाले हैं, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वी आर कॉलिंग इट एज अ प्रोग्राम, राइट? तो ये जो है, ये हमारे को इसमें पढ़ना है इंस्ट्रक्शन सेट्स में, राइट? So that is the entire group of instructions that a microprocessor supports is called as instruction set. 8085 is having 246 total instructions. इसमें क्या हो रहा है, 246 टोटल इंस्ट्रक्शंस है, बट इसको हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे डिवाइड किया हुआ है. जैसे एक प्रकार की इंस्ट्रक्शन ही हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग बाकी चीजों में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. Now each instruction is represented by a 8-bit binary value. तो उसको हम लोग 8-bit binary value से रिप्रेजेंट करेंगे. लिखते वक्त we will write it in hexadecimal, यानी हम लोग 4 बिट के दो डिवाइड करेंगे 8 बिट को, और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके वहां पर लिखेंगे, राइट? तो वो बताया है. फिर उसके बाद है these 8 bits of binary value is called as opcode or instruction byte. ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपकोड. जब लिख रहे हैं हम लोग उसको, तो ऑपकोड के कॉलम में लिखेंगे. ये ऑपकोड हेक्साडेसिमल में लिखने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद हेक्साडेसिमल में लिखने के बाद द माइक्रोप्रोसेसर और इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू मशीन कोड. मशीन कोड क्या होती है? मशीन कोड इज एक्चुअली द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट 8-bit ऑपकोड, राइट? हम लोग लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल, 2 बिट आ रहा है, और उसके बाद उसको कितने इस पर डिवाइड करना है, 8 बिट पर. तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर 8 बिट जाएगा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, राइट? फिर इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट. नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब अब हम लोगों ने उसको और डिवाइड कर दिया. तो पहले इसमें हम लोग बोलते हैं उसको डेटा ट्रांसफर ग्रुप, मतलब जो डेटा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करेगा, दैट those instructions will be called as say the data transfer instructions. जैसे हम लोगों ने कहा था
मूव द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर सी, तो मूव ए टू सी हम लोगों ने लिखा था। ये कौन से ग्रुप इसमें आएगा, ग्रुप में आएगा, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। बट सेकेंड वन इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह के, दोज कम अंडर द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट, राइट। फिर तीसरा जो है दैट इज लॉजिकल। लॉजिकल बोला तो कौन से इंस्ट्रक्शंस है, एंड, और, एक्सॉर, ये जितने भी रहेंगे दोज आर कॉल्ड एज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। फिर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन बोले तो जंप करने वाले इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, तो वो सब के सब दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल मतलब हमारे माइक्रो प्रोसेसर को कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स बनाई गई है, कुछ हमारे कमांड देने के लिए बनाई हुई है, दोज आर कॉल्ड एज द control instructions. So these are the broadly classified 5 instruction sets in which we are going to learn about data transfer instruction या data transfer group, फिर उसके बाद हम लोग arithmetic instruction group, फिर उसके बाद logical instruction group और branching instructions and control instructions। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, राइट। फिर ये है, इसके बाद जो आता है, this is the first one, data transfer instruction. Now these instructions move data between the registers or between the memory and registers। तो हम लोग जहां पर भी कॉपी करें या जहां पर भी मूव करें ये डेटा को, वो सब के सब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में आता है। these instructions copy data from the source to the destination। जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स रजिस्टर या सोर्स वाला कहां पर है और डेस्टिनेशन वाला कहां पर है, तो वो कहां से कहां ले जाएगा, ये जो काम होता है, दिस वर्क इज डन बाय द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस एंड दिस इज जस्ट अ कॉपी। मूव करना मतलब क्या करना, कॉपी करना। ट्रांसफर करना मतलब क्या, कॉपी करना। तो एक जगह पे वहां पर तो रहेगा ही है, पर ये दूसरी जगह पर भी चले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले ओरिजिनल जहां पर सोर्स है उसका डिलीट हो जाता है, वैसा नहीं है। वहां पर भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है। इट्स जस्ट लाइक कॉपिंग अ थिंग और कॉपिंग अ डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, राइट, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर ये वाले स्लाइड्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नाउ दिस इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, वी आर स्टार्टिंग विद दिस। सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो सबसे पहला आता है दैट इज मूव इंस्ट्रक्शन, राइट। नाउ मूव आरडी टू आरएस। आरडी बोला तो डेस्टिनेशन वाला रजिस्टर, आरएस बोला तो सोर्स वाला रजिस्टर, राइट। उसी प्रकार मूव आरएस टू मेमोरी बोला तो सोर्स रजिस्टर टू मेमोरी, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं मूव एम टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो ये तीन प्रकार के जो है ये इंस्ट्रक्शंस इसमें है। What this instruction is going to do, it is going to copy the data from the source to the destination। इसका एक स्नैपशॉट निकाल कर रख लो, इसी में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बनने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक नीचे दिया हुआ है मूव सी टू बी, है ना, उल्टा पढ़ते हैं हम लोग, तो सोर्स वाला बाद में आता है और डेस्टिनेशन वाला पहले आता है। तो मूव सी टू बी, इसका मतलब क्या होगा अगर हम लोग एक्सप्लोर करें या एक्सपांड करें इसको, तो move the content or move the data of register C to the register B। ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म होता है। और मैं जब यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ move C to B, ये जो छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, move C to B, ये जब लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है this is called as a mnemonics। तो this is what we are expected to write in a program। So whenever we will write this in a program, so we will be writing like this, move C to B। while reading we will reading like move C to B, while writing we will write move B to C, यानी B C ऐसा लिखेंगे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो move B to C ऐसा लिखा हुआ है। या अभी एक और इंस्ट्रक्शन लिखा है move M to B, move the data of memory location which is specified by the address in the HL पेयर। तो उसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहां पर रहेगा, HL पेयर में रहेगा, और उस HL पेयर के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पर जो डेटा है that data is to be transferred to register B। this is the meaning of this move M to B, right। so keep this in mind।
दिस इज ऑल। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक सादा लिखा हुआ है मूव RS to RD, move from the source register to the destination register. Now we have 6 general purpose registers B, C, D, E, H, L, and after that we will have one special register, that is accumulator. So in all we are having 7 registers. तो अब इनके साथ आप अगर हर एक के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाओ तो ये कितने सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, राइट। तो कभी मैं एक्यूमुलेटर से डाटा रजिस्टर सी में डालूंगा, कभी एक्यूमुलेटर से रजिस्टर बी में डालूंगा, एक्यूमुलेटर से मैं रजिस्टर डी में डालूंगा, एक्यूमुलेटर से ई में डालूंगा। ये कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। सो द ऑल कॉम्बिनेशंस आर बीइंग इंक्लूडेड इन दिस, right? We are not writing this specific name of that particular register, but we are just specifying the source register and the destination register. Similarly, the second one is the source register and the memory. So we will have again the 7 combinations. Move accumulator to memory, move C to B to a memory, move register C to a memory, move D to M, move E to M, move H to M, move L to L. तो ये एक 7 इंस्ट्रक्शन बनेगी। इसके बाद move from memory to registers. Now the destination is the register and the source is memory. So move the data from the memory to the register, right? So this is all included in this data transfer instructions. Moving the data from one destination or one source to the destination, right? So this is given over there. Then we have the same data transfer instructions in which we have the immediate sort of instruction, which implies that the data is directly stored in the destination register or the memory, right? Move immediate, MVI, move immediate. So make this clear. Now we have to specify this data in the program itself. We are not copying this data, but we are giving this data in the program itself. So as we have written in the last program of addition, MVI A03, in which the opcode was 3E and the data was 03, implies that the data is to be immediately stored from the memory, that is supposed to be 03, and it is to be stored in the accumulator. So MVI A03, the opcode was 3E and the data was 03. So this is a sort of immediate transfer of data. It comes under the data transfer instruction itself. Again, we will have 7 instructions like this. So MVI A, MVI B, MVI C, MVI D, MVI E, MVI H, MVI L, right? So we will have that. Then we have MVI M. MVI M means move the immediate data to the memory, right? So this all comes under these instructions. So in the lower part of the slide, it is showing the examples MVI B57H, right? इसका क्या मतलब होता है? Move the data 57. H means hexadecimal, right? So H stands for hexadecimal always. So we have to write all those things in hexadecimal only. Microprocessor understands only hexadecimal things. So understand means we have the option which is given to the user or the programmer is in hexadecimal form only, right? So when we write MVI B57H, which implies that this 57 is not a decimal data, but it is a hexadecimal data, right? So it should be, it can be written as FF also, MVI BFF, right? When we writing the counters, we'll go through those instructions also. So MVI B57H, which implies that it is a hexadecimal data, right? So, and that data is to be stored or is to be moved, is to be copied in the D register, right? Similarly, MVI M57H, what it implies? It implies that the data 57 is to be loaded in the memory location. अब memory location में कैसे load करेंगे? इसका सबसे पहले address कहाँ डालना पड़ेगा? HL pair में डालना पड़ेगा. So the whole instruction can be read like this: the data 57H should be moved, should be stored immediately in the memory location
whose address is specified in the whose memory location address is being specified in the register HL pair. रजिस्टर पेयर HL में जिसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वहां पर जाके डेटा स्टोर करना है, दैट इज द MVI M वाला इंस्ट्रक्शन. सो दीज आर 8 instructions of moving the immediate data. Right. So this is a 2 byte instruction. एक opcode रहेगा और दूसरा रहेगा डेटा. ये हम लोगों ने पढ़ा था MVI A03. इसमें पहला वाला जो था 3E, that was opcode, and the second one was the data, right? So 3 is the opcode and 03 is the data. 03 was an hexadecimal, right? So this is the second instruction. अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी के लिए आप इसको ऐसा ही रखिए. हम लोग इसको जब एक्चुअली यूज करेंगे तब मैं आप लोगों को इसका मतलब बताऊंगा या ये कैसे काम करता है वो बताऊंगा, राइट? तो हम लोग जब उसको पर्टिकुलरली यूज करेंगे तब. द नेक्स्ट वन इज LDA, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट. अब यहां पर क्या किया हुआ है, ये अगेन दिस इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. एक्यूमुलेटर का डेटा डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो हमारे को प्रोग्राम में ये इंस्ट्रक्शन के साथ ही ज्वाइन करना है. समझ में आ रहा है? तो अब लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट LDA, याद रखना एक्यूमुलेटर का डेटा, सॉरी उल्टा हो गया. सॉरी, लोड एक्यूमुलेटर का मतलब होता है कि मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी करना. सॉरी, उल्टा हो गया. सो LDA इज लोड एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर को लोड करो, राइट? सॉरी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया. सो लोड एक्यूमुलेटर मींस लोड द एक्यूमुलेटर या स्टोर द डेटा in the accumulator from the memory location whose address is specified in this instruction itself. तो यहाँ पर हमारे को मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा. पहले लोअर ऑर्डर एड्रेस आएगा, फिर दूसरा हायर ऑर्डर एड्रेस आएगा. जैसे मान के चलो 6050 में कुछ डेटा है, राइट? ये मेमोरी लोकेशन में डेटा है. 6050 में हमारा डेटा है. जैसे यहाँ लिखा है, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है LDA 2034. इसका मतलब होता है 2034 ये मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पर हमारा कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है जो हम लोगों ने प्रोग्राम में लिखा है, राइट? तो वो डेटा प्रोग्राम में नहीं, हम लोगों ने बाहर अलग से लिखा है, तो हमको अलग से वहां स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो वहां पर जाकर वो डेटा लाकर कहाँ स्टोर करना है, हमको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है. तो दिस इज अगेन अ डेटा ट्रांसफर. मतलब डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन एंड इट इज टू बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, राइट? सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन LDA. ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं. फिर इसके बाद जो है दैट इज द होपफुली स्टैक्स LDX. सॉरी, LDX. सो लोड द register pair. So the contents of the designated register point to a memory location. Now यहां से इसको हम लोग बोलते हैं लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट. जब हम लोग और स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे को अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस है. तो इनडायरेक्ट है, इम्प्लिसिट है, इमीडिएट है, ये सब प्रकार के इंस्ट्रक्शंस उसमें आएंगे. तो LDAX जहां कहीं पे भी जिस भी इंस्ट्रक्शन में X ये आ जाता है, इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि इट रेफर्स टू द रजिस्टर पेयर, राइट? तो हमारे पास LDAX BD है. LDAX B, इसका क्या मतलब होता है? द कंटेंट्स ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर इज टू बी copied or is to be stored in the memory location, right? तो अब हम लोग जब इसको लिखेंगे तब लिखते वक्त LDX B लिखेंगे. ये सिर्फ रजिस्टर पेयर B के लिए है. The contents of the designated register pair point is to a memory location. Okay. एक सेकेंड. Okay. एक सेकेंड ना, इसका ये होता है द कंटेंट्स ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू अ मेमोरी लोकेशन, राइट? तो
ये जो BDA है, yes, LDAX, right? Again, it is. Sorry, again it is थोड़ा सा confusion है. LDAX is again load accumulator with the data which is specified by the register, in the memory location address is specified by the in the रजिस्टर पेयर BD. ये रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, उस मेमोरी लोकेशन का डेटा कहां पर स्टोर करना है? एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है. सॉरी, सो दिस वाज देयर LDAX, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट. मतलब अगेन द एक्यूमुलेटर इज टू बी स्टोर्ड, एक्यूमुलेटर इज टू बी लोडेड. नाउ कहां से स्टोर करना है? द मेमोरी, फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन whose address is specified in this register pair, right? तो अब रजिस्टर पेयर में मुझे पहले वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डालना है. ये जब हम लोग कॉपी करेंगे तब उस वक्त ये काम में आएगा. तो याद रखना इसको, LDAX-B. LDAX-B का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट with the from the memory location whose address is stored is specified in the register pair BD. ओके, समझा क्या? ये कंफ्यूज हो गए? ठीक है, हम लोग लास्ट में रिपीट करेंगे तो बात करेंगे, राइट? सो LDAX-B का मतलब होता है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट विथ द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन, जिसका एड्रेस कहां स्पेसिफाई किया है? BD, ये रजिस्टर पेयर पे स्पेसिफाई किया है. सो दिस इज LDAX-B. फिर इसके बाद आता है LXI. LXI बोला तो लोड, फिर से X आ गया है इसमें, तो X का मतलब होगा हमारा रजिस्टर पेयर से रिलेटेड है, राइट? सो लोड दिस रजिस्टर पेयर विथ द डेटा विच इज स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम इटसेल्फ. तो इंस्ट्रक्शन में ही हमारे को वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा. जैसे कि हम लोगों ने ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज किया है LXI-H 6050, ये हम लोगों ने वहां पर स्टोर किया था. यानी लोड द HL पेयर विथ दिस डेटा, यानी HL में क्या जाएगा? 2034 ये जाएगा. ये समझा क्या इतना? LXI-H. ऐसा ही हम लोग LXI-B कर सकते हैं, LXI-D कर सकते हैं. तो हमारे को इसके 3 प्रकार के इंस्ट्रक्शन बनते हैं: LXI-HL, LXI-BE, LXI-DE. LXI-HL बोला तो HL पेयर को लोड करना है. तो मैंने आपको बताया, जब कभी भी हमारे को मेमोरी लोकेशन या मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस यूज करने हैं, तो उस ड्यूरेशन में हमको क्या करना पड़ता है? पहले HL पेयर को लोड करना पड़ता है वो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से, राइट? तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज LXI-HL. ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमको ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज करनी पड़ेगी, राइट? तो ये आपको याद हो जाएगी ये वाली इंस्ट्रक्शन LXI-HL. इसका इंस्ट्रक्शन है या ऑपकोड है 21, राइट? यहाँ पर किया हुआ है LXI-H 2034, ये एग्जाम्पल दिया है. इसका मतलब क्या होगा? अपने को पहले लिखना पड़ेगा 21, फिर लिखना पड़ेगा 34 और फिर लिखना पड़ेगा 20, राइट? हमने जब प्रोग्राम लिखा था तो उसमें हम लोगों ने उसको स्पेसिफाई किया था. तो LXI मूव इमीडिएट या लोड इमीडिएट प्रकार की इंस्ट्रक्शन है ये, राइट? फिर इसके बाद है LHLD. सो ये जो है लोड HL registers direct, right? This instruction copies the contents of memory location pointed out by 16-bit address into register L. It copies the contents of next memory location into register H, right? तो हमारे को मान के चलो कि HL में लोड करना है डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन, तो एक तो LXI-H ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो है LHLD बोला तो अब क्या करेंगे हम लोग? वो मेमोरी लोकेशन में स्पेसिफाई करेंगे. जैसे मैंने लिखा 6050 में मैंने ये डेटा डाला है 6050 में मैंने डेटा डाला है 04, 6051 में डाला है 03, राइट? मैंने 6050 ये मेमोरी लोकेशन में क्या डाला हुआ है? 04, और 6051 में क्या डाला है? 03. ये दो समझ में आए, राइट?
जैसे ही मैं LHLD यूज करूंगा तो क्या होगा, L में सबसे पहले जो पहला एड्रेस है, जैसे 6050 का डेटा दैट इज 04, ये लोड कहाँ होगा, रजिस्टर L में। उसके बाद का जो नेक्स्ट है 036051 में जो है डेटा, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, हमारा वो डेटा स्टोर होगा कहां पर, H में, राइट। तो अब जैसे नीचे वाली इंस्ट्रक्शन लिखी है LHLD 2040, इसका मतलब होता है लोड HL रजिस्टर्स डायरेक्ट। 2040 में जो डेटा है, मान के चलते हैं वहां पर 04 ये डेटा है, 2040 ये मेमोरी लोकेशन में क्या डेटा है, 04। ये 04 हमको कहां स्टोर करना है, L में, राइट। फिर उसके बाद 2041 में जो डेटा है, उसके बाद के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है, जो मान के चलते हैं हम लोग, लेट इट बी 03 8 बिट का। सो दिस 03 इज टू बी कॉपीड इन रजिस्टर H, राइट। तो LHLD में क्या होता है, हम जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देंगे, वहां से पहले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस L में स्टोर होगा, फिर उसके बाद दूसरे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमारा कहां जाके स्टोर होगा, कहां जाके स्टोर होगा, H में स्टोर होगा। तो H और L को डायरेक्टली लोड करने के लिए ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, LHLD, राइट। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखी LHLD, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 2040 का डेटा, 2040 it is not a data, it is the address of that particular memory location, right? 2040 is not the data, remember this, the data is stored in the memory location जिसका एड्रेस कौन सा है, 2040 ये एड्रेस है, राइट। तो इसका डेटा कहाँ स्टोर करना है, L में स्टोर करना है। और उसके बाद का नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कहाँ पर क्या होगा, 2041। तो 2041 का डेटा कहाँ स्टोर करेंगे हम लोग, H में स्टोर करेंगे, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शन से ये होता है। तो ये हम लोग जब यूज करेंगे एक्चुअली तब हमको पता चलेगा। फिर दूसरा आता है, यहां से चालू होते हैं STA स्टोर। अभी तक हम लोगों ने लोड किया, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, STA। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन हो गया, तो STA स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, राइट। तो अब एक्यूमुलेटर का डेटा कहां पर स्टोर करना है, मेमोरी लोकेशन में, जिसका एड्रेस हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर ही हमारे को वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है STA 2500H, मतलब स्टोर द डेटा और द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर इन दिस मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड हियर। 2500 ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है। इसका मतलब होता है स्टैक्स, ये उल्टा हो गया। और अगर कॉपी करना है वहां से डेटा, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं हम लोग, LDA, ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ये काय के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्यूमुलेटर में डेटा कॉपी करने के लिए, कहां से, वो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस से। और STA काय के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, STA यूज कर रहे हैं क्या कहता है, सॉरी, एक्यूमुलेटर से वो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पे डेटा स्टोर करने के लिए, राइट। तो दिस इज फॉर STA, यानी ये भी सब डेटा ट्रांसफर ग्रुप के ही इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जैसे वहां LDX पढ़ा था, अब यहाँ पे स्टैक्स है, ये सब उल्टा है। सो तो कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आर टू बी कॉपीड, कंटेंट्स ऑफ accumulator are copied into the memory location whose address is specified over there. So यहाँ पे रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस रहेगा, जो भी डेटा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रहेगा, वहां पर हमारे को एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है। तो स्टैक्स X आ गया, यानी रजिस्टर पेयर से रिलेटेड है, राइट। तो ये आ गया। फिर इसके बाद इसका उल्टा, LDX का उल्टा स्टैक्स होता है, राइट। तो स्टैक्स आ गया। फिर इसके बाद है SHLD, वहां पे था LHLD, लोड HL रजिस्टर, राइट। तो SHLD का क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब अब HL पेयर में जो डेटा है वो हमारे को उस मेमोरी लोकेशन में और उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। So that is SHLD. The contents of register L are stored into memory location specified by the 16-bit एड्रेस। ये जो एड्रेस यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ऑपरेंड में, वहां पर जाके स्टोर करना है। उसके बाद का नेक्स्ट डेटा जो भी है
सॉरी एच का जो डेटा है वो उसके बाद के नेक्स्ट के मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है SHLD2550, इसका मतलब है 2550 में L का डेटा जो भी रहेगा, L में जो कुछ भी डेटा है वो स्टोर करेंगे, और 2551 में 2551 यानी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में H का डेटा स्टोर करेंगे, राइट? सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड SHLD LHLD, राइट? एंड आफ्टर दैट वी हैव एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या करना है, X आ गया है उसमें भी, तो एक्सचेंज करना मतलब दो रजिस्टर पेयर के बीच का डेटा एक्सचेंज करना है, राइट? और ये कौन से रजिस्टर पेयर है, HL और DE, इन दोनों के बीच का ही डेटा एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, मतलब DE में जो डेटा है वो HL में चला जाएगा और HL का जो डेटा है वो DE में आ जाएगा. That is called as exchange. This is a one byte instruction, but initially we have to load HL and DE, right? So this comes under exchange. And then we have SPHL. जैसे हम लोगों ने LPHL किया था, सॉरी SPHL जैसे हम लोगों ने एक्सचेंज किया था, तो उसमें क्या किया, DE और HL पेयर का डेटा एक्सचेंज कर दिया, राइट? ऐसे ही अब स्टैक पॉइंटर का डेटा, स्टैक पॉइंटर में हमको कॉपी करना है HL का डेटा, तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये हम लोग रेयरली यूज करेंगे। SPHL, कॉपी द HL पेयर टू द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, वो भी 16 बिट का है स्टैक पॉइंटर, आपने देखा है। उसके नीचे क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, राइट? द इंस्ट्रक्शन लोड्स द कंटेंट ऑफ HL पेयर इनटू स्टैक पॉइंटर, तो तब हमारे को ये SPHL यूज होगा, राइट? और उसके बाद है XTHL। XTHL बोले तो हमारे को एक्सचेंज करना है, तो HL विद टॉप ऑफ द स्टैक, द कंटेंट्स ऑफ L रजिस्टर आर exchanged with the location pointed out by the contents of stack pointer। तो हमारे स्टैक पॉइंटर का जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा, वहां पे जो डेटा होगा, दैट डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन L रजिस्टर। उसके बाद का जो नेक्स्ट होगा स्टैक पॉइंटर के बाद का नेक्स्ट, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द रजिस्टर H। तो SP यानी स्टैक पॉइंटर का जो डेटा है, that is to be copied in register L, and the next memory location address ka data, that is to be stored in register H. So that stands for XTHL, right? So I hope this is over. So I will conclude over here. I hope only 3 to 4 minutes are left. Just we will recall what we have studied. So we have started with this instruction set, instruction register, sorry, instruction sets. Then we have done this, what is an instruction. I will again repeat it in the next class, hopefully on Monday. Then this is the data transfer group. They are classified into 5 categories: data transfer group, arithmetic instruction, logical instructions, branching instruction, and control instruction. We have started with data transfer group, which implies that we are just needing to copy the data from one point to other, or one destination source to the source, सोर्स टू द डेस्टिनेशन, राइट? सो ये हम लोगों ने पढ़ा है, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वी हैव सीन दैट। सो आई एम जस्ट stopping this. If you have any queries, so you can ask on the chat box. Again, we are going to repeat this. I expect from your side that you should just make the snapshots of all these instructions, so that we will be able to understand when we are actually going to use those instructions over there. So if you have any doubts, you can ask me on this, or otherwise I will conclude. So thank you very much. Thank you very much for listening this instruction set. I hope you will go through my YouTube video and you'll like this video. I need you to subscribe and watch my YouTube, because I'm loading all those lectures on YouTube itself. Thank you very much. Have a nice time. Take care. Stay home. Stay safe. Bye. Take care.